Is it visible my screen? Yes. Yes, sir. Okay. Ankita, you also didn't attend the last class. Please attend regularly, otherwise you skip your class. Okay. Okay, sir. Okay, let's just a quick recap for previous class. Yesterday we have discussed about installation and assigning the value of Python. Wait a second. Who's next? Devang. Okay. So you have firstly install PyCharm software, that this one, PyCharm software, and you have also installed a Python 3.9, that is latest version. So you have to click on the first link, google.com, that is search engine here, google.com. ठीक है. google.com, that you have to type a Python download if you still didn't download your software. Python download. ठीक है. You have to click on this link. Just a minute. Who's next? अच्छा, ठीक है. The link is open. ठीक है. Now you have to click on this link, downloadpython.org. You have to click on this link, download Python 3.9. It is the latest version of Python, and you have also install a code editor, that is PyCharm. ठीक है. PyCharm, ठीक है. It's a code editor of Python programming. Good morning. गुड मॉर्निंग आयुष. ठीक है, आपको ये दोनों सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करने हैं. फर्स्ट वन इज दिस, डाउनलोड PyCharm. सॉरी, इट्स द सेकेंड सॉफ्टवेयर दैट यू हैव टू इंस्टॉल इन योर कंप्यूटर सिस्टम. एंड फर्स्ट वन इज दिस. ठीक है, पाइथन प्रोग्रामिंग लेटेस्ट वर्जन इज 3.9.4. ठीक है. इफ़ यू आर यूजिंग स्मार्टफोन और टैबलेट, देन यू हैव टू यूज Pyrite, राइट. यू हैव टू सर्च ऑन गूगल प्ले स्टोर, then it will be open for smartphone and tablets. ठीक है. तो आप इसको इंस्टॉल कर लीजिएगा, और if you have any if you are facing any problem, then please let me know. So in a previous class we have discussed about assigning the values and some basic overview of Python, that is machine language, high level language and low level language, right. Now Shivantika Singh. Okay, I have given some homework. Anyone have done? Only Devang have shown your homework. Yes, sir. Anyone else? Satakshi. Yes, sir. Satakshi. Yes, sir. Sir, actually I've done it, but the thing is I've compiled it, but it is not, there is coming error. Okay. Are you taking class on laptop or smartphone right now? Sir, I'm taking class on smartphone, but still I have laptop in front of me. Okay, can you show me the error? Yeah, can you show me the screenshot of error so that I can Okay, sir, control? I'll send it. Okay. See, now we have to open PyCharm, that is code editor, and yesterday we have given homework that adding two numbers, right. Shivantika and Vanshita, you also attend the question or not? Yes, no, sir. No, sir. Why you still not attempt your question? You have to attempt now, beta. Anyways. Sir, because of Because of the. Okay, Sir, because I download the PyCharm, sir. Okay, no problem, beta. ठीक है. We have
given two numbers, that is a is equal to 20 and b is equal to 10, and I want to add two numbers and as it is the same value, what will be the output? So we have third output, that is c is equal to a plus b. हमने एक थर्ड वेरिएबल डिफाइन कर लिया. प्लीज म्यूट योरसेल्फ, प्लीज प्लीज म्यूट योरसेल्फ. कौन है ये? आयुष तिवारी, प्लीज म्यूट योरसेल्फ. यस, टू ए प्लस बी. सिंपल एज इट इज, जो लॉजिक होता है टू नंबर्स को ऐड करने का, सिंपल. नाउ प्रिंट सी, बस इतना सही करना था. प्रिंट सी. दिस वन. ओके, नाउ you have to run your program. प्रिंट की स्पेलिंग इनकरेक्ट हो गई है, PRINT होगा, ठीक है. प्रिंट्स हो गया था. दिस वन. नाउ सी द आउटपुट. 10 plus 20 is equal to 20 plus 10 is equal to 30. Then that is the right answer, 30. बस इतना ही से करना था बेटा, कल का जो होमवर्क था. ठीक है, कोई कंफ्यूजन बेटा? सताक्षी, कहाँ पे एरर आ रही थी? यहीं पे एरर आ रही थी क्या? Yes, sir. ओके, एनीवेज ठीक है, चेक कर लीजिएगा फिर से, ऐसा कुछ नहीं है. इसमें मैंने क्या किया, दो वैल्यूज थी, उसको मैंने एक थर्ड वैल्यू में स्टोर करा लिया. कल मैंने आप लोगों को बताया था ना, असाइनिंग द वैल्यू, दैट इज a इज इक्वल टू 20. आपने a में 20 वैल्यू असाइन कर दी. b इज इक्वल टू 10, दैट इज आपने b में 10 वैल्यू असाइन कर दी. अब इन दोनों को आपको सम चाहिए था, तो आपने एक थर्ड वेरिएबल ले लिया, दैट इज सी. आप कुछ भी ले सकते हो यहाँ पे, एक्स वाई जेड जो भी आपको लेना हो, आप उसको इज इक्वल टू a प्लस बी, ठीक है, उसमें आपने वैल्यू को स्टोर करा दिया. अब जो भी वैल्यू सी में स्टोर हुआ है वो आपको इसको प्रिंट करा देना है. ठीक है, एक मिनट जरा कॉल करें. हेलो, यस, टेल मी योर नेम, इन विच क्लास बेटा? 8th. You will want the admission or not? But I don't have information about Rishika. Okay, I'll just send you the link. Just join your class, right? We'll see later. Just ping me your number so that I can share link. नहीं, मैं व्हाट्सएप पे सेंड कर दो बेटा, ताकि मैं इसको व्हाट्सएप कर सकूँ. ठीक है, क्योंकि मैं नंबर मैंने सेव नहीं किया है ना. मैं आपको लिंक सेंड कर रहा हूँ. जस्ट मिनट है बेटा, एक सेकंड. Okay, now when you add two numbers, then you add a third variable, then print c. ठीक है, तो ये ऑटोमेटिक जो कल हम लोगों ने डिफाइन किया था, असाइनिंग द वैल्यू एंड स्वैपिंग द वैल्यू एज इट इज़, वही कॉन्सेप्ट था. इधर एनी कन्फ्यूजन? किसी को कन्फ्यूजन है यहाँ पे? No, sir. No, sir. Now we have discussed about variables. Anyone knows about variables? Alphabetical operators. Alphabetical operators, yes, almost we can say that. Why we are using variables in Python? Yes. Anyone? Because variable is something that can denote a value. Exactly. So that we can say that variable is storing the some values
वट एवर यू वॉन्ट टू स्टोर इन अ वेरिएबल्स, ठीक है। तो वेरिएबल्स आर कंटेनर्स फॉर स्टोरिंग द वैल्यूज। जब सपोज आपको कोई वेरिएबल डिफाइन करना है, उसके अंदर स्टोर वैल्यू को स्टोर कराना है, तो हमें वेरिएबल डिफाइन करते हैं। जैसे सपोज अगर एक 2 डिफरेंट थिंग्स हम बता रहे हैं आपको, फिर आप उसको अपने आप एनालाइज कीजिएगा। पेंट, yes, this one, 2 and x. What do you mean by x and what do you mean by 2? Anyone knows क्या 2 है और क्या x है? 2 is a number that is kind of, you can say, 2 is a number that is defined, and x is a variable that is not defined, and we can put any value behalf of x. Exactly. Anyone else? Yes, anyone else? Okay, no problem. Almost she is right. See, it's a constant number, so that we cannot change. If you are defining the number, so you cannot change, क्योंकि आपने यहाँ पे to assign कर दिया, ये value assign, it's a constant number. constant number कभी change नहीं होता है। आपने साइंस में भी पढ़ा होगा, मैथमेटिक्स में भी पढ़ा होगा, तो constant number को आप change नहीं कर सकते हो, और ये फिक्स हो गया। अगर आपने कहीं पे वैल्यू x इज इक्वल टू डिफाइन की हुई है, तो वो आपकी टू वैल्यू असाइन हो चुकी है, ठीक है। लेकिन अगर आपने सिर्फ x लिया हुआ है और इनपुट ऑफ x में करा रहे हो, दैट इज वेरिएबल, तो अब ये डिपेंड करता है यूजर ने कौन सी वैल्यू इनपुट की है, तो ये डिपेंड करता है कौन सी वैल्यू स्टोर करेगा, ठीक है। सपोज किसी यूजर ने दिया 25, ठीक है, किसी ने दिया 35, तो ये हर एक वैल्यू पॉसिबल कंडीशन के लिए वर्क करेगा। बट अगर आपने यहाँ पे x इज इक्वल टू 2 डिफाइन कर दिया, यहाँ पे x इज इक्वल टू 2 डिफाइन कर दिया, दैट इज x की वैल्यू हमेशा 2 ही रहेगी, कभी वो 35 25 नहीं हो सकता है। तो ये डिफरेंस है। अगर आप वेरिएबल डिफाइन करते हो, इट्स मीन आप उससे मल्टीपल इनपुट ले सकते हो और ये यूजर फ्रेंडली हो सकता है, ठीक है। और अगर आपने x इज इक्वल टू 2 डिफाइन कर दिया, तो ये यूजर डिफाइंड होगा, ठीक है। यूजर मतलब आपने एक सॉफ्टवेयर बनाया जिसमें सिर्फ ये 2 नंबर्स के लिए ही वर्क करेगा, उसमें आप यूजर से कोई इनपुट नहीं करा सकते हो, दैट इज क्योंकि आपने कोई वेरिएबल डिफाइन नहीं किया है, ठीक है। तो अगर आपको कभी भी इनपुट लेना है या आपको वेरिएबल स्टोर करानी है, तो आपको वहाँ पे वेरिएबल को डिफाइन करना होगा। अब जैसे अगर आपने यहाँ पे 2 लिखा और यहाँ पे मैंने लिखा, एक मैं स्टेटमेंट लिख देता हूँ, फिर आपको और अच्छे से क्लियर होगा। x इज इक्वल टू इंटीजर इनपुट इंटर द फर्स्ट नंबर, enter the first number, ठीक है। ये एक स्टेटमेंट है और ऊपर एक स्टेटमेंट है x, नीचे ही लिख देता हूं मैं, ठीक है। यहां पे x इज इक्वल टू 2। यस, टेल मी द डिफरेंस इन बोथ लाइंस। इंटर द फर्स्ट नंबर छूट गया है, बट यहां पर आप समझ लीजिएगा, इंटर द फर्स्ट नंबर, फर्स्ट नंबर। ये शिवांतिका, टेल मी द डिफरेंस। तो वहाँ मतलब हमें रन करके, वहाँ पे पहले वाले में हमें रन करके नंबर डालना होगा, मतलब रन करके फिर उसमें पूछेगा एंटर द फर्स्ट नंबर, तो हम कुछ भी डाल सकते हैं, पर नीचे वाले में एक्स की वैल्यू दी हुई है। गुड, यस। जो ऊपर स्टेटमेंट है बेटा, आपने यूजर डिफाइन किया है, ठीक है। यूजर के अकॉर्डिंग आपने स्टेटमेंट डिफाइन करना है, क्योंकि आपने कोई वैल्यू यूजर से इनपुट करेगा, उसको आपको अपने वेरिएबल, दैट इज दिस वन, एक्स में आपको स्टोर कर देना है, ठीक है। और नीचे जो वेरिएबल आपने डिफाइन किया है, यहां पर 2, x इज इक्वल टू 2, यहां पर आपने डिफाइन कर दिया, तो ये यूजर डिफाइंड हो गया, ठीक है। आपने यूजर के लिए 2 नंबर डिफाइन कर दिया, और ये आपने यहाँ पे एक वेरिएबल डिफाइन किया जिसमें आप यूजर से इनपुट ले रहे हो। यहाँ पे यूजर के लिए कोई ऑप्शन नहीं दिया आपने, ठीक है। यहाँ पे आपने एज इट इज डिफाइन कर दिया 2, मतलब ये हर जगह पे x की वैल्यू 2 ही एज्यूम करेगा। बट चूंकि आपने यहाँ पे इंटीजर इनपुट एंटर द फर्स्ट नंबर आपने लिखा, तो यानी आप यूजर से एंटर कर रहे हो, कोई भी नंबर एंटर कर सकता है। सपोज यूजर ने इनपुट किया 35, 45, 36, वट एवर, जो भी वो चाह रहा है, ठीक है।
तो ये 35 लेके उसके करस्पॉन्डिंग आपको आउटपुट देगा, और यहाँ पर x इज इक्वल टू 2 के अकॉर्डिंग वो आउटपुट देगा। अब इसको समझते हैं एक एग्जाम्पल से, जैसे हमने कल एग्जाम्पल दिया था हाउ टू ऐड टू नंबर्स। तो अगर हमें हुए तो देखो आपने जो डिफाइन किया दैट दिस वन, यहाँ पे आपने a इज इक्वल टू 10 दिखा था, a इज इक्वल टू 10 एंड b इज इक्वल टू 20। सिंपल आपने यहाँ पे c इज इक्वल टू a प्लस b, ठीक है, एंड प्रिंट c। ये कल का प्रोग्राम आप लोगों ने किया था, ठीक है, प्रिंट c। सिंपल यहाँ पे अब देखो क्या डिफरेंस है, यहाँ पे a इज इक्वल टू 10 एंड b इज इक्वल टू 20। यहाँ पे आपने उस वैल्यू को डिफाइन कर दिया है सो दैट वी कैन नॉट चेंज, या यूजर कैन नॉट चेंज द वैल्यू। क्योंकि यूजर जो है तो उसे उसके पास तो आपने ऑप्शन ही नहीं दिया ना वैल्यू को इनपुट कराने के लिए, तो इनपुट नहीं करेगा तो वो स्टोर क्या करेगा, आपने पहले ही क्या वैल्यू को स्टोर कर दिया है। ए में 10 ही वैल्यू स्टोर करेगा, 11 12 या कोई रैंडम वैल्यू स्टोर नहीं करेगा। तो ये आपकी असाइन वैल्यू हो गई, ठीक है। बट अगर आपने यूजर से इनपुट कराया, सपोज यहाँ पे INT मैंने लिख दिया, ठीक है, INT दैट इज डेटा टाइप ऑफ वैल्यू, ठीक है। इनपुट आप उसको इंस्ट्रक्शन दे रहे हो इनपुट, ठीक है, दैट इज अगेन इंटर द फर्स्ट नंबर, ठीक है, इंटर द फर्स्ट नंबर। जिन लोगों ने इसको पढ़ा हुआ है बेटा उनके लिए ये काफ़ी इजी होगा, जो फर्स्ट टाइम पढ़ रहे होगा थोड़ा सा टिपिकल लग रहा होगा, ठीक है। नाउ अगेन इंटीजर इनपुट, अगेन इंटर द सेकेंड नंबर, इंटर द सेकेंड नंबर, ठीक है। नाउ अगेन रन द प्रोग्राम। सी देखो अभी क्या आ रहा था, अभी तो आप डायरेक्ट रिजल्ट आ रहा था, क्योंकि जब भी आप प्रोग्राम रन करोगे वहां पे 30 आंसर आ रहा था। बट चूंकि आपने यहाँ पे यूजर से इनपुट लिया है, ठीक है, इनपुट द फर्स्ट नंबर, तो यहाँ पे देखो नीचे आउटपुट में आ रहा है एंटर द फर्स्ट नंबर। अब यहाँ पे कोई भी नंबर आप डिफाइन कर सकते हो, जरूरी नहीं है कि 10 ही डिफाइन करो। सपोज मेरा मन किया 35 डिफाइन करने के लिए, तो मैंने 35 डिफाइन कर दिया एंड एंटर द सेकेंड नंबर, सो डिफाइंड 35 या 56 मैंने डिफाइन कर दिया। सी 91 इज द राइट आंसर। तो ये इस तरह से जब आप यूजर से इनपुट लो के आप करस्पॉन्डिंग बनाओ तो आपका जो एप्लीकेशन होगा वो रिलायबल होगा। अगर आपने सिर्फ एक यूजर के लिए बनाया तो वो रिलायबल नहीं होगा। आपको हमेशा जो एप्लीकेशन बनाने होते हैं वो बल्क के लिए बनाने होते हैं, बल्क मतलब मास लोगों के लिए बनाने होते हैं ताकि वो हर लोग यूज कर सकें। कोई एक यूजर के लिए तो आप बनाते नहीं हो, ठीक है। अगर एक यूजर के लिए बनाते हैं तो मुझसे बेटा स्पेसिफिक सॉफ्टवेयर बोलते हैं, ठीक है। मान लो किसी सिंगल यूजर के लिए आपने बनाया तो वो स्पेसिफिक सॉफ्टवेयर होते हैं, ठीक है। बट ये एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर आपने मास के लिए बनाया तो यहाँ पे आपने जो वैल्यू ली उसको आपने वेरिएबल में स्टोर करा दिया और उसके करस्पॉन्डिंग आपको रिजल्ट मिल गया। एनी कंफ्यूजन बेटा? यस एनीवन? कोई कंफ्यूजन? नो सर। ओके नाउ नेक्स्ट क्रिएटिंग अ वेरिएबल, जो मैंने अभी आपको बता दिया कैसे करना है। देखो पाइथन हैज नो कमांड फॉर डिक्लेयरिंग वेरिएबल। इसका कोई पहले से कोई कमांड डिफाइन नहीं होता है, आप अपने अकॉर्डिंग डिफाइन कर सकते हो। कैपिटल ले सकते हो, स्मॉल ले सकते हो, ठीक है, कैपिटल जेड स्मॉल जेड, हाँ। बट वेरिएबल्स आर वेरिएबल शुड बी अ सेंसिटिव वैल्यू, ठीक है। क्योंकि आपका अगर आपने कैपिटल ए और कैपिटल बी में अगर डिफरेंस कर दिया, सपोज यहाँ पर आपने कैपिटल ए लिखा होगा, ठीक है, सेंसिटिव समझ रहे हो, लाइक कैपिटल में वैल्यू स्टोर करा रहे हो तो कैपिटल ही प्रिंट कराओगे, स्मॉल नहीं प्रिंट करा सकते हो। अब मैं अगर इस प्रोग्राम को रन कराऊंगा तो क्या आएगा, आंसर आएगा या नहीं आएगा? यस टेल मी, आंसर आएगा या नहीं? नहीं सर, नहीं आएगा। एग्जैक्टली एरर आएगी। क्यों? क्योंकि आपने स्मॉल ए स्मॉल डिफाइन किया है। अभी देखते हैं क्या एरर आ रही है। रीड कैसे कर गया, एक मिनट। हाँ रीड इसलिए कर गया क्योंकि अभी ये क्या है बेटा, ये इंटरप्रेटर बेस्ड आपका प्रोग्रामिंग सिस्टम, यानी फर्स्ट लाइन एग्जीक्यूट की है, ठीक है, फर्स्ट लाइन एग्जीक्यूट की है। तो फर्स्ट लाइन देखो मैंने एग्जीक्यूट करा दिया, सेकंड भी एग्जीक्यूट की, क्योंकि यहाँ तक भी आपका प्रोग्राम सही है। 59, ठीक है। अब देखो एरर आ गया, क्यों? क्योंकि थर्ड लाइन में आपने क्या लिखा था, स्मॉल ए प्लस बी, जो कि थर्ड लाइन में उसे ए कहीं मिला ही नहीं। ए इज नॉट डिफाइंड, इफ यू आर सीइंग द एरर, नेम एरर,
ए इज नॉट डिफाइंड, यानी स्मॉल ए आपने डिफाइन नहीं किया है, आपने कैपिटल ए डिफाइन किया है। तो आपको ये भी ध्यान रखना होगा बेटा कि जो आपका केस सेंसिटिव है पाइथन, उसको वेरिएबल भी आपका केस सेंसिटिव होता है। ऐसा नहीं कि कैपिटल ए लिख के आप स्मॉल ए में वैल्यू को प्रिंट करा सकते हैं। तो ये ध्यान रखना होगा, ठीक है। नेक्स्ट है बेटा, अ वेरिएबल इज क्रिएटेड द मोमेंट यू फर्स्ट असाइन द वैल्यू। एग्जैक्टली, वेरिएबल ही पहला मोमेंट है जहां पर आप किसी भी प्रोग्राम को डिफाइन करते हो, ठीक है, असाइन करते हो वैल्यू। सपोज x इज इक्वल टू 5, y इज इक्वल टू जॉन। एनीवन टेल मी द आंसर फॉर फर्स्ट एग्जांपल, क्या आंसर आएगा इसका? So x की जगह पे 5 हो जाएगा और y की जगह पे जॉन। एग्जैक्टली, 5 एंड जॉन, ठीक है, ये एज इट इज आएगा। और हाँ, एक चीज ध्यान रखना बेटा, अगर यहाँ पे सिंगल कोट होता और जैसे यहाँ डबल इन्वर्टेड कोड है ना, सिंगल कोड भी एज इट इज वर्क करता है, ठीक है। पाइथन में डबल इन्वर्टेड कोड और सिंगल कोड एज इट इज वर्क करता है, उसमें कोई डिफरेंस नहीं है, ठीक है। वेरिएबल डू नॉट नीड द डिक्लेयर नंबर में इन्वर्टेड कॉमास नहीं लगाते हैं। नहीं, नंबर में नहीं लगाएंगे बेटा, Inverted स्ट्रिंग्स comma नहीं। नहीं, स्ट्रिंग्स में हम लगाते हैं, नंबर में इन्वर्टेड कॉमा नहीं लगेगा कभी भी, ठीक है। स्ट्रिंग है ये, इसलिए आपको यहाँ पे डिफाइन करना पड़ा। नेक्स्ट टॉपिक को जब हम डेटा टाइप पढ़ेंगे तो आपको बताएंगे बेटा कि स्ट्रिंग में कैसी वैल्यू को स्टोर करते हो। आज वेरिएबल है टॉपिक, ठीक है। तो x और y आपने वेरिएबल में स्टोर करा दिया वैल्यू को, और उसको आपने प्रिंट करा दिया। प्रिंट इज आउटपुट वेरिएबल, ठीक है। आप प्रिंट स्टेटमेंट क्या करते हो? एज ए आउटपुट यूज करते हो। कभी भी आपको आउटपुट चाहिए तो वहां पे आप प्रिंट स्टेटमेंट यूज कर सकते हो, ठीक है। वेरिएबल डू नॉट नीड द डिक्लेयर विथ एनी पर्टिकुलर टाइप और कैन इवन चेंज टाइप आफ्टर दे हैव बीन सेट। आप वेरिएबल्स को इवन कहीं से भी जैसे ऐसा ना, कैन नॉट बी डिक्लेयर्ड इन एनी पर्टिकुलर टाइप। आप हर जगह इसको एज इट इज नहीं कर सकते, जैसे जहां पे आपको रिक्वायरमेंट है आप उसको अकॉर्डिंग उसको डिफाइन करेंगे। ऐसा नहीं कि आपके बीच फंक्शन में आप वेरिएबल को डिफाइन कर रहे हैं, नहीं, आपको हमेशा इनिशियलाइज करना है अपने वेरिएबल से। आप अभी सपोज इसी प्रोग्राम में अगर मैं वेरिएबल जो इनिशियलाइज किया है उसको मैं बीच में करूं, जहां पहले मैंने ये फर्स्ट लॉजिक लगा दिया एंड देन उसके बाद इनिशियलाइज कर रहा हूं, तो क्या पॉसिबल है? नहीं, एरर आ जाएगी। अगर मैंने इनिशियलाइज पहले कर दिया, सॉरी, वैल्यू का लॉजिक पहले लगा दिया और उसके बाद इनिशियलाइज कर रहे हैं, तो क्या सेम आउटपुट आएगा? नहीं, अगेन एरर आ जाएगी, क्योंकि आपने वहां पर एक बार चेक कर लेते हैं एरर क्या आएगी। क्योंकि आपने पहले वैल्यू को असाइन नहीं किया, पहले आपने लॉजिक ही लगा दिया, तो फर्स्ट वैल्यू में ही एरर आएगी। देखो फर्स्ट लाइन में ही एरर आ गई, ठीक है। वो फर्स्ट स्टेटमेंट में ही रीड नहीं पाएगा, उसे ए नहीं मिल रहा है, ठीक है, ए प्लस बी, तो पहला ही लाइन गलत है, इसलिए ये रीड नहीं करेगा। तो इनिशियलाइज आपको पहले ही करना है अकॉर्डिंग टू योर रिक्वायरमेंट, ठीक है। सी x इज इक्वल टू 4 एंड y x इज इक्वल टू सैली। सैली इट्स अ स्ट्रिंग वैल्यू बेटा, और इट्स अ इंटीजर वैल्यू। ध्यान रखिएगा, जो नंबर्स होते हैं जो नंबर्स होते हैं वो होते हैं इंटीजर वैल्यूज, ठीक है। सपोज आपने कोई भी नंबर डिफाइन किया 4, 5, 6, ये हो गई आपकी इंटीजर वैल्यू, ठीक है। इट्स अ इंटीजर डेटा टाइप, INT, ठीक है। सेम यही वैल्यू अगर 4.0, 5.0, 6.0, दिस इज फ्लोट वैल्यू, इट कैन बी रिप्रेजेंटेड एज अ डेसिमल वैल्यू, ठीक है। फ्लोट वैल्यू, ठीक है, फ्लोट डेटा टाइप। एंड इफ वी आर डिक्लेयरिंग अबाउट स्ट्रिंग यानी अल्फाबेट, सपोज DSE, इट्स अ स्ट्रिंग डेटा टाइप, ठीक है। जहां पर आप अल्फाबेट्स को कैरी कर रहे हो वो होता है स्ट्रिंग, दैट इज STR। दीज आर द डेटा टाइप वी आर यूजिंग आवर प्रोग्राम, ठीक है। और भी बहुत होते हैं, लॉन्ग होते हैं, डबल फ्लोट होते हैं, तो उसको जैसे जैसे हमें रिक्वायरमेंट आएगी हम लोग यूज करते चलेंगे और उसको पढ़ते चलेंगे, ठीक है। नेक्स्ट है वेयर इट इज, दिस वन। नाउ कास्टिंग, ये देखो यहाँ पे, हाँ एक चीज और ध्यान रखना, हैश वैल्यू इज शोइंग द कमेंट ऑफ योर पाइथन, ठीक है। अगर आपने हैश लगा दिया तो यहाँ दिख रहा है ना, x इज इक्वल टू x इज अ टाइप ऑफ इंटीजर, दिस इज द कमेंट वैल्यू, ठीक है। कमेंट वैल्यू क्या होती है? आपकी प्रोग्राम में रन नहीं करती है कभी, वो सिर्फ आपके प्रोग्रामर के लिए होते हैं कि हमने क्या डिफाइन किया है। इसको जब भी आप आउट करोगे, सॉरी
समझने के लिए उसे याद है कि मैंने फिर क्यों किया था ये। जी सिर्फ बेटा ये प्रोग्रामर के लिए बेटा, ये प्रोग्रामर, इसको यूजर से कोई मतलब नहीं है। ये हम अपने, जैसे हम प्रोग्राम लिख रहे हैं, सपोज मैंने 1000 लाइन का प्रोग्राम लिखा, तो अब 1000 लाइन को हम ब्रेक करेंगे ना कमेंट सेक्शन में कि मेरा ये हेडर है, फिर ये फुटर है, फिर ये मेरा मेन एरिया है, फिर मेरा ये स्केल एरिया है। तो वो जो हम अपने लिए, जो प्रोग्रामर अपने लिए यूज करता है कि हाँ यहाँ पर मैंने ये डिफाइन कर दिया, या पर्टिकुलर कोड को उसे ब्लॉक करना है, तो वहां पे वो सिंपल कमेंट सेक्शन यूज कर देता है, यानी हैश लगा देगा तो पूरा का पूरा कोड रन नहीं करेगा। ठीक है, तो कमेंट इज द सेंस ऑफ, आपको वहां पे सिर्फ ये प्रोग्रामर के लिए यूज के लिए होता है। ठीक है, वो स्टेटमेंट एग्जीक्यूट नहीं होगा जो भी आप कमेंट यूज करोगे। ठीक है, अब ये को अलग अलग प्रोग्रामिंग में अलग अलग का सिंटैक्स होता है। तो अगर आप पाइथन में देखोगे तो हैश होता है, आप HTML में देखोगे तो सिंपल ग्रेटर देन और एक एक्सप्लेनेशन का साइन लगता है, डैश डैश लगता है, तो आपको वहां पे कमेंट लग जाता है। ठीक है, नाउ सर कास्टिंग, ये प्रोग्राम जब कंपाइल होगा तो वहां पे क्या आएगा? ये प्रोग्राम Output? सेम Yes, sir. सेम एज वही आएगा बेटा। चलो मैं इसको करके दिखाता हूँ आपको, Ctrl+C। ये सिर्फ यूजर के लिए, ये प्रोग्रामर के लिए बेटा, यहां पे उससे कोई इफेक्ट नहीं पड़ने वाला। सी देखो ये ऑटोमेटिक डिसेबल होगा, क्यों? क्योंकि ये कमेंट सेक्शन है ना। अगेन रन कराते हैं इसको, सेम आएगा x इज इक्वल टू 4 एंड y इज इक्वल टू सैली, यानी प्रिंट क्या आएगा 4 सैली। यहां पे जो एक्टिव वैल्यू है आपकी ये नहीं आएगी। ठीक है, x इज इक्वल टू इंटीजर। हाँ देखो सेकंड वैल्यू स्टेटमेंट पहले रीड हुई, क्योंकि आपके फर्स्ट में x आ गया एंड सेकंड वैल्यू आपकी स्टोर हो गई। अगर आपने यहाँ पे सेकंड भी स्टोर करा दिया, प्रिंट x, एक मिनट, देखो 4 एंड सैली दोनों आ गया। फर्स्ट में सिर्फ सैली क्यों आया? एनीवन नोज सैली क्यों आई फर्स्ट में जब स्मॉल x था? कैपिटल में या कुछ है? नहीं, कैपिटल में तो हमने अभी रन किया आपको डिफरेंस दिखाने के लिए। जब x इज इक्वल टू 4 है एंड x इज इक्वल टू सैली है, ठीक है, अब क्या होगा, क्या डिफरेंस? अब देखो यहाँ सिर्फ सैली ऑप्शन आ रहा है, क्यों? हट जाएगा सर क्योंकि उसने फर्स्ट लाइन रीड की जी। एक मिनट, एरर आ गई। एंड देन एग्जीक्यूट सेकेंड वाली को किया। नहीं ऐसा नहीं है, देखो फर्स्ट लाइन एग्जीक्यूट किया तो x में वैल्यू स्टोर हो 4, ठीक है, आपने डेटा वेरिएबल चेंज नहीं किया, अगेन x में डिफाइन किया सैली, तो जो 4 थी वो स्वैप हो गई किससे? अब सैली आ गई, वहां पर वैल्यू सैली आ गई, और आपने अगेन सिर्फ प्रिंट x कराया है तो आपकी वैल्यू सिर्फ सैली आएगी। अगेन अगर आप, मैं यहाँ पे एक और डिफाइन कर देता हूँ, सेम एज इट इज सेम वैल्यू, और यहाँ पे DSE लिख देता हूँ, ठीक है, अभी वैल्यू क्या आएगी? DSE आएगी, क्योंकि वहां पे वैल्यू स्वैप हो जाती है। ठीक है, एक बार चेक कर लेते हैं, देन डिस्कस करते हैं। ठीक है, चेक करो आउटपुट क्या आ रहा है। देखो DSE आ गया, क्यों? क्योंकि 4 वैल्यू ओवरकम किया सैली, और सैली को आपने ओवरकम कर दिया क्योंकि आपने वैल्यू स्वैप करा दी ना। अब देखो पहले x में वैल्यू क्या थी? 4 थी, यहां पे आते x की वैल्यू आपने पहले 4 डिफाइन की, ठीक है, और सेम एज इट इज सेकेंड लाइन में आपने कुछ भी चेंज नहीं किया और आपने यहां पे लिख दिया सैली। ठीक है, अब x जो 4 था अब वो किस में कन्वर्ट हो गया? अब सैली में, उसकी वैल्यू जगह स्वैप हो गई, सैली आ गई। ठीक है, तो आप अगर आप प्रिंट करोगे x तो ये वैल्यू नहीं आएगी ना, क्योंकि आपने सेकंड स्टेटमेंट में क्या किया, आपने इसको चेंज कर दिया, आपने वहां पे वैल्यू को स्वैप कर दिया। ठीक है, अगेन अगर आपने यहां पे वैल्यू स्वैप कर दिया x इज इक्वल टू DSE, तो सैली स्वैप हो जाएगी DSE से। ठीक है, क्योंकि जो वैल्यू आप कंटेन करा रहे हो वहां पे वैल्यू स्टोर करा दी ना। ठीक है, अगर आपने प्रिंट यहीं पे कर दिया होता, प्रिंट C या प्रिंट X, तो आपका x 4 आ जाता है। ठीक है, और यहां पर भी अगर आप कर देंगे प्रिंट x, तो ये वैल्यू दोनों प्रिंट हो जाएगी। ठीक है, पहले 4 प्रिंट होगी, फिर सैली भी प्रिंट हो जाएगी, लेकिन आपने लास्ट में ही सीधा प्रिंट कराया, यानी लास्ट वैल्यू को आप अडॉप्ट कर रहे हो, तो लास्ट वैल्यू में जो स्टोर होगी वैल्यू वही प्रिंट होगी। ठीक है, कोई कंफ्यूजन बेटा यहाँ पे? नो सर। गुड, तो ये देखो ये आपकी वैल्यू ऐसे ही प्रिंट, ये देखो कमेंट सेक्शन से कोई मतलब नहीं, ये सिर्फ हमें अपने समझने के लिए एज अ प्रोग्रामर
कि x क्या है, वो टाइप ऑफ इंटीजर है या x ऑफ टाइप ऑफ स्ट्रिंग है, ठीक है, x इज अ टाइप ऑफ स्ट्रिंग। तो कमेंट हम जब 100 लाइन या 1000 लाइन का कोड करते हैं तो हम उसको बाइफरकेट करने के लिए हम कमेंट्स भी यूज़ करते हैं, ठीक है। Okay, now time is almost over, beta. So that you can just write the homework. Please write a program. Write a program. Please note it down, beta. Write a program. Done. Write a program to identify. Sorry. Write a program to determine whether a given number is पॉजिटिव और नेगेटिव। एक छोटा सा क्वेश्चन है, आपको सिंपल चेक करना है कि नंबर पॉजिटिव है और नेगेटिव है, ठीक है। यस सर। सिंपल आपको लॉजिक लगाना है, यहाँ पे एक कंडीशन डिफाइन होगी, ठीक है, इफ कंडीशन। अब आपको वहाँ इफ कंडीशन में क्या यूज करना है, सिंपली आपको वो टाइप करना है। पॉजिटिव चेक करने के लिए आप कौन सी कंडीशन को डिफाइन करोगे, अगर आपने वो कंडीशन वहाँ पे सेटिस्फाई करती है, सपोज मैंने यहाँ एक कंडीशन डिफाइन की, ठीक है, इफ, ठीक है, यहाँ पे मैंने जो कंडीशन डिफाइन की अगर वो सेटिस्फाई कर रही है तो द वैल्यू इज प्रिंट, आप लिखेंगे क्या, प्रिंट द वैल्यू इज पॉजिटिव। एंड अगर ये कंडीशन फॉल्स हो गई तो एल्स में आप आएंगे, ठीक है, एल्स, ये कंडीशन आपको खुद डिफाइन करनी है, प्रिंट द वैल्यू इज नेगेटिव, ठीक है, ये आपको प्रिंट कराना है बेटा। गेटिंग माई पॉइंट बेटा? Yes, sir. ओके, यस। ओके, तो ऑलमोस्ट टाइम इज ओवर नाउ बेटा। सो प्लीज़ क्लासेस को टाइम से